बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट, फ्री चार्ज में लीड डिजाइनर, पेटीएम, उसके बाद क्लास प्लस, कार्स 24 और बहुत सारी जो इंडिया की जुपिटर मनी, रेजर पे, अपस्टॉक्स, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उनमें गए हैं। How was your time at Zomato? As a beginner UI UX designer, how much salary can you expect? कह कौन रहा है? 10th क्लास में हो तुम, बच्चों की बात मत करो, तुम खुद बच्चे हो। रोस्ट मत करो यार। I didn't do that well. पर ठीक। अब घूम फिर के आ ही जाते हो स्टोन एज पे। Hello everyone, welcome to the 10th episode of Tea with Aditi. And today with me I have the UX coach, जिनकी आपने ad तो पक्का ही देखी होगी. He is someone who has not only mastered the art of crafting user experience, but has also transformed the lives of over 2 lakh students through his mentorship. So aajao, let's dive deep in the field of UI UX design. So Rohan bhai, kaise ho aap? अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एड्स पे तो आजकल सभी कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई लव योर एनर्जी, आई लव द persistence that you're doing, and I look forward to having a great conversation and hopefully create some value for you and your viewers. So super excited to be here. Even I loved your persistent for showing ads. Okay, perfect. Thank you. So in the starting, आप ही इंट्रोड्यूस करा दो, मतलब लोग आपको तो जानते ही होंगे आई एम श्योर, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ। अब अपनी कितनी ही तारीफ करूं, कम ही लगता है। चलो फिर शुरू करते हैं। So hey guys, my name is Rohan. I have been a UX designer, educator, and teacher, and a entrepreneur for all my life. I started with developing websites. Soon realized that this is something that I enjoy. I'm good at it, but world needs someone to care about how to make products that are easy to use, and that's why I switched to UX design. Thought that that skill needs to be taught to other people because, like, they were not having jobs, they were not doing anything meaningful at that point of time. So started teaching it, so became a teacher after that, and then thought that this needs to be not just done for students but also for professionals. So became an entrepreneur, started this company called Mastery, which has a lot of courses which help you upskill and level up in your journeys, career journeys. And that's that is a little bit about me. Yeah, and the rest I'll keep telling you in tidbits here and there. And I show a lot of ads. Yeah. So if someone wants to start UI UX design in 2024, what should be a kind of roadmap for them? Okay, so if somebody wants to start their UI UX design journey in 2025, let's talk about what are a few things that you need to focus on. So first thing is you need to understand that UI UX designers solve problem, and this is a very cliched line. I hate this line. उसका main reason ये है कि people don't understand कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या, प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम ये समझो कि अगर तुम्हारे ना तुम शूज पहन के जा रहे हो और वो फट गए, ठीक है, और मतलब उसमें कुछ फट गया, राइट? तो तुम एक कॉबलर के पास जाओगे, जो मोची होता है उसके पास जाओगे और वो उसको सिल देगा, राइट? तो क्या तुम्हारे को एक प्रॉब्लम थी, उसने सॉल्व कर दी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो क्या एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर हम वही काम कर रहे हैं? आंसर है नहीं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर बोले ना, तो सबसे पहले ये समझे कि प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए सॉल्व कर रहे हो और कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जो है ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि वो ना टेक्नोलॉजी को स्केलेबल बनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सके और आराम से कर सके, उनको दिक्कत ना हो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, और अगर उसमें कुछ वो फन कर सकते हैं, डिलाइटफुल कर सकते हैं, तो इससे एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूजर इंटरफेस यूआई, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइन जो है, उसके सेंटर में सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला टर्म जो है वो है यूजर।
कि जो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ना एक यूजर को समझना है। यूजर को क्या समझना है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या उसके चैलेंजेस है, किस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना चाहता है, खाना क्यों मंगाना चाहता है। तो आपको ना उसके मोटिवेशंस, चैलेंजेस, पेन पॉइंट्स को पहले समझना पड़ेगा। और जब आप उस चीज को समझ पाओगे, तब आप उनके लिए प्रोडक्ट्स बेटर बना पाओगे। तो सबसे पहले यूजर अंडरस्टैंडिंग और साइकोलॉजी, व्हाट मेक्स देम मोटिवेटेड अबाउट डूइंग दिस, व्हाट आर द चैलेंजेस। और अगर उनके अभी कोई प्रॉब्लम है या कोई उनको चैलेंज आ रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो सब कुछ आपको उनसे समझना पड़ेगा, तो आप यूजर्स को समझ जाओगे। दूसरा, आपको सीखना है कि चीजें बनानी कैसे, क्योंकि जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे ना, कोई आपको बड़ी यूआई यूएक्स डिजाइन की प्रॉब्लम नहीं देगा। वो कहेगा यार ये मैंने वायरफ्रेम बनाया, मतलब ये मेरा रफ स्केच है ऑफ द डिजाइन, क्या आप इसको एक विजुअल डिजाइन फिग्मा में बना सकते हो। तो वो स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर तीसरी चीज इज जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अपने आइडियाज को क्या आप दूसरों को समझा पा रहे हो। जो भी आपने डिजाइन सोल्यूशन बनाया है, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या ये आप लोगों को समझा सकते हो। ये 3-4 चीजें हैं जो अगर आप सीख लोगे, तो आपका ना जर्नी बहुत आसान हो जाएगा यूआई यूएक्स में। बहुत लोग इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर सबसे पहले जो भी कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जो जैसे उबर है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो या तो आप रोड तक चल के जाओगे, फिर ऑटो वाला या कैब वाले को ढूंढोगे, फिर उसका नेगोशिएशन करोगे कि यार इतना नहीं इतना। फिर आपको ना उसको बिल्कुल या तो उसके फोन पे ना मैप डाल के, उसका फोन लेके उसके मैप पे डालना पड़ेगा। वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है आपके हाथ में फोन देने में, आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो कितना इजी सोल्यूशन है, आप जहां पे खड़े हो, आपकी मोबाइल की लोकेशन से वो आपको गाड़ी वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। पर ये एक्सपीरियंस ना डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लो आप ना उस पर कर रहे हो, बट वो कह रहा है कि ना पूरा एड्रेस डालो तो मैं पहुंचूंगा आपके पास, राइट। तो बहुत लोगों को पूरा एड्रेस ही नहीं पता होता, पता नहीं होता, कभी कभी ना वो यहाँ का डालोगे आप, वो पिछली गली में आ जाएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक्सपीरियंस काफी मुश्किल भी हो सकता है। तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर जब आप बनते हो या बनोगे, तो आपको ना एक यूजफुल थिंग्स यूजेबल करना है। मतलब कि अगर कोई चीज हेल्पफुल है लोगों के लिए, उनको हेल्प कर रही है कुछ भी चीज करने के लिए, तो आपको बस उसको मोर यूजेबल बनाना है। मतलब कैसे लोग उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाए, उनको ज्यादा कुछ सीखना ना पड़े। उनको जब वो यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसा डल डल नहीं लग रहा, बहुत सारे बटन्स नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं हो रहे, उनको बहुत आसानी से पता है कि अभी ये किया है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर आप ये 3 चीजें, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, डेवलप कर लोगे। दूसरी चीज अगर आप डेवलप कर लोगे फिग्मा में डिजाइन वगैरह कैसे बनाने हैं। और तीसरा, अगर आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा कि जो भी आपने यूजर से बात करी और समझी, वो दूसरों को समझा पा रहे हो कि लोगों को ये दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं ये फीचर बना रहा हूँ, और इसलिए मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, पर ये वाला सोल्यूशन मैंने इसलिए लिया है। अगर ये कोर स्किल्स पे आप फोकस करोगे, तो आप अपना डिजाइन करियर स्टार्ट कर सकते तो जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल, तो हाउ डू यू गेट बेटर एट कम्युनिकेशन? हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आज की डेट में ना, जब एआई इतना अच्छा हो रहा है, तो चीजें तो बहुत सारी एआई की मदद से लोग करा ही दिया। आई एम श्योर आपके ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो चैट जीपीटी यूज करते होंगे और बस उसको यूज करते हैं। बट और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना, कम्युनिकेशन का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन ह्यूमन बीइंग है। आप ना लोगों से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो जितना आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो आपके पास था, तो जो भी आप उनको दिखाओगे ना, शायद उनके लिए सेंस नहीं बनाएगा। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज हाउ वी कम्युनिकेट आइडियाज, इंस्पायर अदर्स, इंस्पायर एक्शन। किसी को भी हम मोटिवेट करते हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, किसी को कोई एक्शन करने को बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कम्युनिकेट करके। और कम्युनिकेशन करना जो सबसे पुराना मेथड है, लोग ना जब स्टोन एज वगैरह में बहुत आदिवासी लोग और उससे भी पहले जब लोग रहते थे ना, तो वो क्या करते थे, हर रात को ना आग लगाते थे और उसके आसपास बैठ के ना कहानियां हम्म। सुनाते थे एक दूसरे को। तो वो कहानियां लोगों को याद रह जाती थी। तो कम्युनिकेशन के लिए ना स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले जब आप स्टोरी सुनाने लगते हो लोगों को, तो कम्युनिकेशन आपका वैसे ही बेटर हो जाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन में ना एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। दूसरों को सुनना, और बहुत इंटेंटली सुनना। एक होता है सुनना और एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल दे, वो नहीं करना है। सुनना है टू अंडरस्टैंड।
मोस्टली पीपल जो सुनते हैं ना दूसरों को, वो इस पर्सपेक्टिव से सुनते हैं कि मुझे इसका कुछ आंसर देना है, मुझे इस पे कुछ रिएक्ट करना है। नहीं, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उसको समझना है, और अगर आपको लगे आप पूरा समझ गए हो, फिर ही उस पे कुछ ऐड करो या उसको बोलो कि कुछ भी, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग, एक्टिव लिसनिंग, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट टेकिंग शुरू करो। जो भी आप चीजें कर रहे हो ना, तो हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन्ड है कि हमें सारी चीजें याद नहीं रहती। आप जितना टाइम दोगे अपने माइंड को, वो उस कॉन्वर्सेशन को या उस चीज को उतना भूलता जाए। तो जो भी हो रहा है, जो भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लो। अगर आपने कुछ यूजर से बात करी, उन्होंने कुछ कहा, उसको लिख लो। अगर कुछ आइडिया आया तो उसको लिख लो। तो जब आप ये 3 चीजें करोगे, स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो जाओगे, जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, और जब आप डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दोगे, तो आप कम्युनिकेशन में बेटर हो जाओगे। और उसके अलावा यार, जनरल सी चीज है, लोगों से बात करो, कोशिश करो कि उनको आप बहुत ईज़ी टर्म्स में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी अ, काम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्यूशन है, उसको बहुत आराम से सामने वाले को समझा सको। अगर आप चीज़ों को सिम्प्लीफाई करके समझा सकते हो सामने वाले को, यही कम्युनिकेशन है। अगर आपको किसी 6 से 7 साल के बच्चे को यूआई यूएक्स का कांसेप्ट समझाना है, तो फिर आप कैसे समझाओगे? तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले कि यार क्यों सीख रहा है? घुटने के बल चलना सीख ले पहले, ठीक है? मतलब यूआई यूएक्स में क्या होता है? तो मतलब यार, यूआई यूएक्स को अगर ना सिंपली, मतलब आई थिंक कि 5-6 साल का बच्चा तो अभी काफ़ी छोटा होता है, बट अगर फिर भी बता रहा हूँ, तो उसको मैं इस तरीके से समझाऊँगा कि यार देख, अगर तुझे ना एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो किड्स वाली टॉय होती है, वो पकड़ के वो चलना सीखते हैं, ठीक है वॉकर, ना? हाँ, हाँ। मतलब कुछ होता है जो ट्राई व्हील टाइप का होता है, आगे एक व्हील होता है, 2 साइड में होता है। तो मैंने कहा तूने ये हुँ, पकड़ हुँ। के चला, ठीक है? तुझे ये कैसे पता लगा कि जब तू इसको पकड़ेगा तो तू इसकी मदद से चल पाएगा? अगर यूआई यूएक्स डिजाइन अच्छे से नहीं हुआ होता, तो तुझे समझ नहीं आता इसको यूज कैसे करना है। बट इसको यूज करना तेरे लिए इतना आसान था क्योंकि इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है? तो बहुत ही मतलब बेसिक डेफिनेशन में तो मैं यही समझा था कि देख, अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, ठीक है? जैसे तू ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, तो तूने इस चीज को पकड़ा और चलना सीखा। तो इसको अगर तेरे को बहुत ज्यादा तू कंफ्यूज हो रहा है, या तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूज हो रहा है, अगर मैं एक 6 साल के बच्चे को कहूँगा, वो वैसे ही बाल खींच लेगा, अभी मैं दुनिया में आया हूँ, तुम कंफ्यूजन की बात कर रहे हो। तो 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 बेसिकली उसको तो मैं ये समझाऊँगा कि देख, तेरे को अगर ये पकड़ के वहाँ तक जाना है, तो तुझे अगर तू खड़ा हुआ, वो हैंडल काफ़ी नीचे है या काफ़ी ऊपर है, नहीं है ना, वो बिल्कुल राइट हाइट पे है, जिस हिसाब से तेरे को यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये समझ ले कि अगर थोड़ा भी ऊपर होता, थोड़ा भी नीचे होता, तो तू ऐसे चल रहा होता। या ऐसे चल रहा होता, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो दैट इज़ नॉट द गुड एक्सपीरियंस। तो वो बिल्कुल राइट हाइट पे है, ताकि तू एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए। इन द एसेंस हम यही डिजिटल प्रोडक्ट्स में करना चाह रहे हैं, जब लोग उसे बना रहे बढ़िया समझाया, अब बच्चे भी यूएक्स डिज़ाइनर बनेंगे। हैं। मतलब कह कौन रहा है? 10th क्लास में हो तुम, बच्चों की बात मत करो, तुम खुद बच्चे हो। रोस्ट मत करो यार। आई कैन डू दैट वेल आल्सो। बट ठीक है, कमिंग बैक, यस। सो व्हाट्स एन एरिया इन यूआई यूएक्स जहाँ आपको लगता है कि एआई इज़ अंडर यूटिलाइज्ड बट उसमें पोटेंशियल है? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एआई जो है ना, वो तो एआई को समझते हैं। एआई ना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2020 में नहीं आया है, 2021 में नहीं आया है। एआई जो है ना, 1950s से इस पे काम चल रहा है, ठीक है? और लोग उससे ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चैलेंजेस 2 थे। फर्स्ट इज़ कि हमारे पास ना कंप्यूटर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि हम इतने सारे मॉडल्स को, जो जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, उनको रन कर सके। इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। दुनिया के पास वो कंप्यूटिंग पावर ना रिसेंटली आई है कि इतने सारे मॉडल्स को वो रन कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाह रहे थे उससे हम ना मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाएँ। मतलब कि एक रोबोट बनाएँ जो इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग कर सकता है, चीज़ें समझ सकता है, उसमें डिसेंट बिट ऑफ इमोशन भी है। अब वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करनी, पर हुआ ये कि जब चैट जीपीटी ने क्या किया, उसने कहा यार, मैं वो बनाऊँ उससे पहले मैं एक टेस्ट करूँगा कि मतलब लोग क्या, जो एक एआई है, उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं।
और उस चीज को जब उन्होंने लॉन्च किया उसी को उन्होंने चैट जीपीटी नाम दे दिया, ठीक है। अब उसकी से हुआ ये कि ना एआई मेन स्ट्रीम हो गई, मतलब कि पहले जो है ना 2016-17 से एआई में मतलब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने लग गई थी, क्योंकि जो डेवलपर्स है जो कोड लिखते हैं ना वो उसका यूज कर पा रहे थे। पर जैसे ही चैट इंटरफेस में वो एआई का क्लब हो गया विच इज चैट विद जीपीटी, ठीक है, वो वाला जो कॉम्बिनेशन बनाना उससे वो मेन स्ट्रीम हो गया, मतलब मैं और तुम यूज कर सकते हैं अगर हमें कोडिंग का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ ये कि वो ना अब बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और एक अगर कॉन्सेप्ट सुनाओ तो एक कॉन्सेप्ट है 4 मिनट माइल। मतलब कि जब तक फर्स्ट रनर ने 4 मिनट में 1 माइल की रेस कंप्लीट नहीं करी थी ना, उससे पहले सबको लगता था कि वो चीज नहीं हो सकती, बट जब उसने कर दी उसके कुछ ही दिनों बाद 3-4 लोगों ने और कर दी। तो इसी तरीके से एआई में क्या हुआ, जब जब ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है उसने ये फिगर आउट कर लिया, तो बहुत सारी कंपनी तभी ने गूगल में कोड रेड हो गया, उन्होंने भी फिगर आउट कर दिया, मेटा में भी फिगर आउट हो गया, एंथ्रोपिक में फिगर आउट हो गया, बहुत सारी कंपनीज ने ना इसको बनाना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो वो बड़ा एजीआई वाला सपना था ना कि एक ह्यूमन मतलब रोबोट ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, उसकी तरह वो कर पाएगा, वो ड्रीम भी पास आ गया, क्योंकि अब उसमें एडवांसमेंट्स इतने होने लग गए, लोग कंप्यूटिंग पावर जो थी कंप्यूटर्स की पावर बढ़ाने में सोचने लग गए, एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी बन गई, वो सब कुछ हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि हर एक फील्ड में, सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइन नहीं, हर एक फील्ड में अब बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिक यूज केस पे काम करने लग गए हैं उसके। तो उसकी वजह से ना आज अगर मैं कुछ भी बोलूंगा कि ये होने वाला है या ये होगा, कोई ना कोई वो फिगर आउट कर रहा होगा या कर चुका हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बताऊंगा वो अभी बहुत टाइम लेगी। अब कोई भी एआई में ऐसे डेवलपमेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स विल हैपन इन नेक्स्ट 5 to 7 years, ठीक है, जितनी भी होनी है। वो जो एजीआई का सपना है ना कि बिल्कुल रोबोट ह्यूमन की तरह डिसीजन वगैरह बनाना, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसकी वजह से यूआई यूएक्स डिजाइन में ना अभी ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं जो विजुअल डिजाइन बना रहे हैं। वो अब उसमें विजुअल डिजाइन का मतलब है मॉकअप्स जो फाइनल होते हैं जैसा डिजाइन लगेगा वो बना रहे हैं। अब उसमें बात आती है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। अभी उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, प्रिसीजन इतना अच्छा नहीं है, बट विद इन हो सकता है 10 months वो वहां पहुंच जाए, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा जब हम टेस्ट करते हैं प्रोटोटाइप बना के, डिजाइन बना के लोगों के साथ, उसमें भी एआई काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो एक चीज पूरे यूआई यूएक्स डिजाइन प्रोसेस में ऐसी बच जाएगी जो ह्यूमंस बेटर कर पाएंगे फॉर काफी लंबे टाइम तक, वो ये है कि यूजर रिसर्च, लोगों से बात करना, उनके चैलेंजेस को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना, वो वाली चीज जो है वो सबसे लंबे टाइम तक एआई से दूर रहेगी, ठीक है। बाकी हर चीज, चाहे वो वायरफ्रेम बनाना हो गया, चाहे वो विजुअल डिजाइन बनाना हो गया, इवेंचुअली आफ्टर अ फ्यू इयर्स वो एआई से ही होगी ना। उसमें भी एक बहुत बड़ा नुआंस है, लोग कहते हैं तो फिर हम जॉब छोड़ देते हैं ना, क्योंकि किसी और चीज में मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, ह्यूमन फीडबैक, ह्यूमन लाइक रिव्यू चाहिए ही होता है, विच इज कि जब वो डिजाइन बन जाएगा ना एआई की मदद से, उस पर डिजाइन सिस्टम लग जाएगा जो कंपनीज यूज करती है कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, कि उन्होंने कंपोनेंट्स बना के रख लिए, ये ऐसा हमारा बटन दिखेगा, ऐसा हमारा ड्रॉप डाउन दिखेगा। तो वो सब जब लगा दिया उसके बाद रिव्यू करने का काम एंड फाइनली सेइंग कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और क्वालिटी टेस्टेड है, ये चीज ह्यूमंस ही करेंगे फॉर अ व्हाइल। फिर इवेंचुअली क्या होगा, वो चीज जो फीडबैक उन्होंने दिया कि ये सही है ये गलत है, वो भी एआई में डाल दिया जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा। बट आई थिंक विजुअल डिजाइन और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में सबसे ज्यादा एआई का इन्फ्लुएंस आएगा। तो मतलब छोटे क्वेश्चन का बड़ा आंसर, बट दैट्स द आंसर। व्हाट आर सम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इन यूआई जो आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं और वो बढ़िया भी चल जाता है? तो एक होता है साइकोलॉजिकल हैक और या साइकोलॉजी समझ के किसी चीज को डिजाइन करना, दूसरा होता है डार्क पैटर्न्स। डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजिकल हैक जो है इज अ पुश, कि अगर आप एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो ये दिखाना कि जनरली अगर उनके पास लो स्टॉक है तो वो दिखा रहे हैं कि लो स्टॉक, ठीक है। दैट इज अ पुश कि लोग ना स्कैरसिटी को देख के कि मतलब कम ही एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू बढ़ गई, तो वो फटाफट लेना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज साइकोलॉजिकल। बट जब आप
बट वो लेना चाहता था, उसका मोटिवेशन था कहीं ना कहीं उसका लेने का एनीवे। दूसरा ये is कि लोग ना वो चीज नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आप उनको उसके ऊपर पुश किए जा रहे हो, विच इज द डार्क पैटर्न। अगर मान लो कि अ, आपने कोई चीज खरीदी और उसके बाद ना वो दूसरी आपको कोई चीज वो कर रहा है, अपसेल कर रहा है कि यार ये भी चीज ले लो, और आपको ना क्रॉस का बटन ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब मिल रहा कि कैसे मैं इस चीज से नहीं लेना अपसेल, मना कैसे करूं। तो दैट इज अ डार्क पैटर्न, बिकॉज मैंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया एंड यू आर ट्राइंग टू पुश मी टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट विच इज स्टिल ओके, बट देन यू आर नॉट लेटिंग मी गेट आउट ऑफ दैट फ्लो, मतलब तब आप मुझे उस चीज से निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हो, दैट इज अ डार्क पैटर्न। तो साइकोलॉजी यार बहुत ही बेसिक कुछ फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपको क्लैरिटी बढ़ानी है, ठीक है। आपको जो है, जो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ये सोचो कि अ कंफ्यूज माइंड ऑलवेज सेज नो, मतलब अगर कोई कंफ्यूज है ना तो वो हमेशा नो ही बोलेगा जो भी चीज आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ना मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट में ना क्लैरिटी आप बढ़ा रहे हो, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या वो कर रहा है यूजर्स के लिए, कैसे हेल्प करेगा, कैसे बेटर है दूसरी चीजों से, इन सबको बढ़ा रहे हो। उसके बाद आप अगर जेन्युइन है तो स्कैरसिटी बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर दिस दैट ये कर रहे हो, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी के प्रिंसिपल समझने पड़ता है कि हाउ ह्यूमन माइंड थिंक्स। लोग क्यों कोई चीज खरीदते हैं, लोग कोई किसी चीज में क्यों आते हैं, लोग कोई भी चीज क्यों करते हैं, और इसके लिए ना ह्यूमन मोटिवेशंस बहुत ही लिमिटेड है, विच इज कि यार लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए, मतलब लोगों को पैसा कमाना है, बचाना है, लोगों को टाइम बचाना है अपना, ठीक है। लोगों को अपना फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट बचाना है, लोगों को अ, लोगों को ना मतलब लोगों को हमेशा फील होना चाहिए कि वो कंट्रोल में है, कोई और उनके लिए उनके डिसीजंस नहीं बना रहा है। तो यही कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप कोर प्रिंसिपल लेके चीजों को बनाते हो तो वो अच्छा काम करता है। पर अगर यूजर का कोर मोटिवेशन नहीं है वो चीज करने का, और फिर भी आप लोगों को फोर्स कर रहे हो करने के लिए, तो वो डार्क पैटर्न है, वो आपको नहीं करना चाहिए। आप घूम फिर के आ ही जाते हो स्टोन एज पे। यार देखो, तो दो चीजें हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, एंड दिस इज द वे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं या तो बोल सकता हूं कि यूजर्स ना, अगर उनको कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगेगी तो वो उस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है। पर दिस इज नॉट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखोगे तो फिर आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री स्कैन मतलब समझनी पड़ेगी ऑफ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब जब भी ना उनको कंफ्यूजन होती है, तो बेसिकली वो सेम हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जब वो किसी फियरफुल या किसी भी ना डेंजर सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा क्या देखा कि उनकी ना माइंड में ये चीज हो गई कि कभी भी कोई चीज लड़ने वाली देखो ना, या कोई चीज कंफ्यूजिंग देखो ना, तो या तो मतलब बहुत ही लड़ाई टाइप कर लो, या तो बिल्कुल बंद कर दो कि हाँ बस हो गया, ठीक है। तो मतलब फाइट और फ्लाइट, ठीक है। तो वो वहां से आता है, तो इसीलिए ना मतलब मैं चीजों को ना थोड़ा डीप जाके समझने की कोशिश करता हूँ कि हम ह्यूमन बींग्स ऐसा कर रहे हैं और एट स्केल कर रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा ना उसका, उसके पीछे का कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट रीजन इज, एंड आई थिंक उसी की वजह से मैं स्टोन एज में पहुंच जाता हूँ बार बार। What qualities आपको लगता है कि separate a good designer from a bad, not bad also, but a mediocre one? Great designer versus good designer, okay, so what's the separation? So separation is very simple यार, कि एक अच्छा जो डिजाइनर है ना, उसको जैसे ही आप प्रॉब्लम बताओगे वो जाएगा फिग्मा पे और वो डिजाइन करना शुरू कर देगा स्क्रीन। जो ग्रेट डिजाइनर है ना, वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन सो दैट वो डिजाइनर को वो चीज डीपली समझ में आए कि कोई चीज हो रही है, क्यों हो रही है, हम आज इस पे काम क्यों कर रहे हैं, पहले हमने इससे पहले इस पे फोकस क्यों नहीं किया, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, यूजर्स इसको और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस बीइंग द नंबर वन। सेकंड इज टॉकिंग टू पीपल टू अंडरस्टैंड देम, बॉडी लैंग्वेज समझना कि शायद उसने मुझे इस चीज का आंसर ये दिया है पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यार मतलब जस्ट द वे ऑफ
प्रेजेंटिंग एंड कम्युनिकेशन अगेन, कि अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप जस्ट स्क्रीन नहीं रख रहे हो, आप उसको अच्छे मॉकअप्स में डाल रहे हो, आप उसके पीछे की कहानी कि आपने कोई चीज क्यों बनाई, वैसी क्यों बनाई, और यूजर ड्रिवन कैसे है, जो क्वेश्चंस आपने पूछे वो कैसे आपको इस डिजाइन तक या इस सोल्यूशन तक आने में हेल्प कर रहे हैं। ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी चीजें जो सेपरेट करती है अच्छे डिजाइनर्स और बहुत अच्छे डिजाइनर्स। How was your time at Zomato? My time at Zomato was very good, very uncomfortable but very good. And uncomfortable in the sense that Zomato is a very high bar culture, बहुत टैलेंटेड स्मार्ट लोग काम करते हैं वहां पे, तो आप कुछ भी जस्ट स्लाइड बाय नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग, यू हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग कि तुम्हें कुछ नहीं आता बट यू विल फिगर आउट व्हाइल यू गो थ्रू द प्रोसेस। तो जो भी आप चीज कर रहे हो, तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, और ऐसा बहुत बार होगा कि आपको चीज नहीं आती है। और आई थिंक उस जगह की ना सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छे लोग वहां पे काम करते हैं ना। तो आप जब अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो वेरी वेरी अनकंफर्टेबल टाइम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज करना है, लर्न करना है, बट वेरी एंजॉयबल एट द सेम टाइम। आई लव माय टाइम एट Zomato। आपने कोई ऐसा वहां पर प्रोडक्ट डिजाइन किया हो जो अभी भी देखने को मिलता है हमें? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। आई थिंक जो बैकएंड सपोर्ट की पूरी टीम है वो आज भी सेम यूज करती है। चैट सपोर्ट पे मैंने बहुत काम किया था। ऑनलाइन डिलीवरी में मैंने बहुत सारे फीचर्स जो बनाए थे, प्रोडक्ट्स जो बनाए थे, वो आज भी लाइव हैं। मर्चेंट साइट पे मैंने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बनाए थे वो भी आज भी लाइव हैं। उस पे ऑब्वियसली और अच्छे डिजाइनर्स आए हैं, उन्होंने और यूज केसेस के लिए सॉल्व किया है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाए यार। वहां पे मैं 2 साल था, उस 2 साल की ड्यूरेशन में मैंने ऑलमोस्ट 24 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, और ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। एंड मतलब every place that you work and you work some meaning, add some meaningful contribution to it, तो वो ना रह जाता है थोड़ा टाइम तक। तो प्रोडक्ट में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने डिजाइन करी थी, और बहुत सारे अच्छे डिजाइनर्स मेरे बाद आके उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड किया है और भी अच्छी चीजें बनाई है। एंड that's what I think I love about Zomato। इतनी जल्दी चेंजेस करते थे ना यार, हर 5 महीने में यूआई चेंज कर देते थे बैक इन द डेज टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। तो चीजें पीछे हो जाती है, वो ऑब्वियसली मुझे लगता है अगले 5-7 साल में बहुत सारी चीजें जो शायद हट भी जाएंगी जो मैंने बनाई थी अपने टाइम में, एंड पीपल विल मेक समथिंग बेटर। लोग उससे अच्छी कोई चीज बनाएंगे जो यूजर्स की प्रॉब्लम और भी बेटर तरीके से सॉल्व कर रही है। As a beginner UI UX designer, how much salary can you expect? यार सी, सो इसमें ना यार मैं जेनरिक आंसर नहीं देना चाहता, बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ टियर 2, देयर इज समवन सिटिंग इन टियर 3, टियर 1। अगर आप गुड़गांव में हो, आप बैंगलोर में हो, काफी अलग हो सकता है, क्योंकि यार बैंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, गुड़गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, टियर 2 में उतना नहीं होता है। तो बट आई थिंक गुड स्टार्टिंग फॉर बैंगलोर विल बी, जो किसी टियर 3 में बैठा हुआ बंदा अपनी करियर में जब 20 साल लगा देगा उसके बाद कमाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मतलब जो गुड स्टार्टिंग होगी एक टियर 2 के लिए, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा फॉर अ गुरुग्राम। ठीक है, तो वो काफी डिपेंड करता है, बट शुड स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 7 and above। I think that should be a fair enough 7, 8 and above कहीं भी काम करें। I think that should be a reasonable thing, 7, 8 LPA and above। Yeah, How absolutely। do you price your service? Yeah, so when you are starting out, so like there are a lot of good advice on the internet about value based pricing। मतलब जितना वैल्यू क्रिएट करो उसके हिसाब से प्राइस करो। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके पास ये लग्जरी या ये ऑप्शन नहीं हो। तो बेसिकली डिसाइड अ मिनिमम अमाउंट जिसके नीचे आप काम नहीं करोगे। उसके नीचे अगर आपको काम करना होगा तो आप उसको फ्री ही कर दोगे। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड करो। सो लेट्स सपोज अगर आप एक छोटी सी वेबसाइट बना रहे हो
and you're going to charge a certain amount. तो डिसाइड करो कि इस अमाउंट से नीचे मैं डिजाइन नहीं करूंगा, इस अमाउंट से अगर नीचे डिजाइन करना है तो मैं फ्री में करके दे दूंगा, सो दैट मतलब ये ना हो कि मतलब बिल्कुल ही चार्ज नहीं किया, क्योंकि अपनी वैल्यू कम नहीं करने की यार, मतलब 2000 रुपए में पूरी वेबसाइट बना दी, वो वाला स्टेटस नहीं लेना, ठीक है। तो एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड करो, उसके हिसाब से लाइक पिच करो। जब आपके पास ना ज्यादा क्लाइंट्स आ जाए या यू आर गेटिंग मोर देन 2-3 क्लाइंट्स, तब अपना प्राइस 10 to 15%, 20% इवन आप बढ़ाते जा सकते हो एवरी क्लाइंट, ठीक है। जब आपके पास डिमांड ज्यादा है, मेक श्योर कि जब आप प्राइस बढ़ा रहे हो ना, तो उसके लिए आपके पास डिमांड है। तो अगर आपकी कैपेसिटी है 3 प्रोजेक्ट्स की करने की और आपके साथ 5 क्लाइंट्स काम करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट आप अपना प्राइस 20% बढ़ाओ। अगर क्लाइंट्स अभी कम आ रहे हैं एंड लाइक barely सर्वाइव कर पा रहे हो एंड एवरीथिंग, तो जितना प्राइस है उतना ही रखो एंड सर्व क्लाइंट्स। तो दिस इज द वे, बेस्ट वे इज कि एक मिनिमम प्राइस सेट करो, क्योंकि शुरू में यू वांट टू डेवलप स्किल्स, यू वांट टू गेट सम एक्सपीरियंस, यू वांट टू गेट सम वर्ड अप, एंड जब आप वो स्किल्स डेवलप कर लोगे, आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, एंड देन नाउ अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स वांट्स टू वर्क विद यू, देन यू इंक्रीज योर प्राइस एंड देन यू कीप इंक्रीजिंग योर प्राइस, देयर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। एंड जब ये सब आप कर रहे हो, उसके बाद इवेंचुअली व्हेन you have done 50-ish clients, then you can think about moving to value based pricing, मतलब कि जितने का मैं इम्पैक्ट डिलीवर करूंगा उस हिसाब से आई कैन चार्ज यू। बट थोड़ा सा इंडिया में न्यू कॉन्सेप्ट है, तो बहुत लोग करते नहीं है, तो यू कैन कीप इंक्रीजिंग प्राइस एंड यू कैन अर्न अ लॉट बाय दैट मेथडोलॉजी एज वेल। So that wraps up our conversation with Rohan Bhai. I hope you found this episode as insightful and enjoyable as I did. Rohan Bhai, thank you for accepting my podcast invite. I really love to have this conversation with you. If you love this discussion, don't forget to hit subscribe and share this podcast with your friends. Your support means the world and help us bring more amazing stories and guests your way. See you in the next episode of Tea with Aditi. Until then, take care and keep sipping tea. 10 एपिसोड हो गए, इंट्रो आउट्रो देना नहीं आया मेरे को।